الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا والصلاة والسلام علی رسولہ المصطفیٰ وعلى آلہ واصحابہ ذوی الدرجات العلی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عرض و معروض سے قبل یعنی کچھ سننے اور سنانے سے پہلے آئیے ہم تمامی حضرات اپنی اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے حضور سرور سروراں انیس بے کساں رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین وہ آقائے کریم جن کا چرچا عرش پر، جن کی شہرت فرش پر اور جن کی شان انا اعطیناک الکوثر، عبداللہ کے پیارے دائی حلیمہ کے آنکھوں کے تارے، بی بی آمنہ کے لخت جگر، ہم غریبوں کے سہارے، محبوب پروردگار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دربار پر انوار میں گنبد خضرا کو نگاہوں میں بسا کر غلامانہ و عاشقانہ و محبتانہ انداز میں درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیک صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ میرے دینی بھائی، آپ حضرات آج بہت سست لگ رہے ہیں، جی لگا کر ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں جھوم کر سارا مجمع باواز بلند درود پاک اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیک صلاۃ و سلام دائما سرمدا۔ ہم سنیوں کے جان امام احمد رضا خان، میرے بھائی جب بھی اعلیٰ حضرت کا نام آئے تو سنیوں کو مسکرا کر سبحان اللہ کہنا چاہیے، کیونکہ میرے اعلیٰ حضرت نے ہم لوگوں کو آقا حسین سے محبت کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ اگر میرے اعلیٰ حضرت نہ ہوتے تو یہ لمبی جانگیاں پہن کر نگر نگر ڈگر ڈگر گھومنے والے یہ شرک و بدعات کے فتوے لگا رہے تھے کہ ذکر حسین کرنا بدعت ہے، نبی کی میلاد پڑھنا کنہیا کے جنم سے تشبیہ دے رہے تھے معاذ اللہ، لیکن یہ اعلیٰ حضرت ہی کا کرم ہے۔ کون اعلیٰ حضرت؟ اعلیٰ حضرت کسی بریلی کے خان صاحب کا نام نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کسی ایسے ویسے شخصیت کا نام نہیں ہے، اعلیٰ حضرت عاشق رسول کا نام ہے۔ عشق رسول میں ڈوبے رہتے تھے سرکار اعلیٰ حضرت، آقائے کریم سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ او اعلیٰ حضرت کی بات آئی ہے تو ایک بات سنو، سرکار اعلیٰ حضرت جب حج کرنے کی غرض سے جاتے ہیں نا، ارکان حج ادا کیا، مدینۃ الرسول میں حاضری دیتے ہیں، آقائے کریم کے روضے پر حاضری دیتے ہیں، آقائے کریم کے روضے کے قریب جب پہنچتے ہیں تو کیا دیکھا؟ ایک کانٹا آستانے کے قریب پڑا ہے۔ اعلیٰ حضرت جب اس کانٹے کو دیکھتے ہیں، اسی سے اندازہ لگا لینا میرا بھائی
کہ आला हजरत को आका से कितनी मोहब्बत है। जब उस कांटे को देखा, उस कांटे को मुखातब करके इमाम अहमद रजा खान ने कहा, इनके हरम के खार कशीदा है किस लिए। खार के माने कांटा। मौलाना साहब से पूछो, कशीदा के माने इधर उधर यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ बिखरा हुआ। पुकार उठे उस कांटे को देख करके, इनके हरम के खार कशीदा है किस लिए। आंखों में आए सर पे रहे दिल में घर करें। वही सरकार आला हजरत पुकार उठे, ए मेरे हबीब के दयार का कांटा तू जमी पर क्यों पड़ा है। आ मेरे आंखों में लग जा, अहमद रजा तुझे आंखों का सुरमा बना लेगा। मेरे सर पे आ जा, अहमद रजा सर का ताज बनाकर तुझे सजा लेगा। मेरे दिल के अंदर आ जा, तुझे अहमद रजा रहने की जगह इनायत कर देगा। वही आला हजरत बारगाह रिसालत में रकम तराज हैं। अर्ज करते हैं या हबीब अल्लाह, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले। यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, और सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे एक न एक बनाया। हदीस पाक की तर्जमानी सुनो, सरकार आला हजरत ने यूं क्यों कहा। सिदरा हजरत जिब्रील अमी के रहने की जगह है। सरकार आकाए करीम के दीवाने की निगाह जब इस हदीस पर पड़ती है कि मेरे प्यारे आका की बारगाह में जिब्रील अमी हाजिर होते हैं, कदम मुबारक को चूमा, आका के गोरे गोरे रुखसार की ज़ियारत कर रहे हैं। गैबदा नबी बड़े मस्ती में बैठे मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराते मुस्कुराते मेरे आका ने जिब्रील से पूछा, ए जिब्रील एक बात बताओ। हाँ मेरे आका, इरशाद फरमाया जाए। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, आप क्या पूछना चाहते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी ने पूछा था, ए जिब्रील तुमने तमाम नबी की बारगाह में हाजिरी दी है। हाँ मेरे आका, आदम से लेकर ईसा तक तमाम नबियों की बारगाह में मैंने हाजिरी दी है। अब मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जिब्रील सीने पे हाथ रख के सोच करके बताना, तुमने दुनिया की सैर की है। हाँ मेरे आका, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, पूरे दुनिया के चप्पे चप्पे को मैंने छान डाला है, मैंने सब कुछ देखा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिब्रील जमीन और आसमान के बीच में तुम्हारा 12 आना जाना रहा है। हाँ मेरे आका, जमीनों आसमान के बीच में 12 मेरा आना जाना रहा है। अब आकाए करीम के जुमले को मुलाहिजा करो और मचल कर बोल देना सुभान अल्लाह। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जिब्रील अमी तुमने तमाम नबी की नबूवत को देखा है, दुनिया के कोने कोने को देखा है, जमीनों आसमान के बीच में तुमने सैर की है, लेकिन क्या किसी को किसी नबी की नबूवत में या दुनिया के किसी कोने में तुमने हमारे जैसा देखा है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, क्या तुमने कभी किसी को मेरे जैसा देखा है। जिब्रील अमी कदम पे गिर गए, कहो मेरे प्यारे आका, आप अपने जैसा देखने की बात करते हैं। अरे आपके जैसा देखना तो दरकिनार, आपके गोरे तलवे में जो मिट्टी लग गई मैंने उसके बराबर किसी को नहीं देखा है। हम सुन्नियों के जान इमाम अहमद रजा खान पुकार उठे, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, और या हबीब अल्लाह सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे एक न एक बनाया, तुझे एक न एक बनाया। ए मेरे आका हुसैन की महफिल में आने वालों, मेरा ईमान और अकीदा है कि परेवा खान के अंदर हम लोग जिक्र हुसैन मना रहे हैं, मगर मेरा ईमान और अकीदा है कि इराक की सरजमीन से मेरा आका हुसैन हमें देख रहा है, मेरा आका हुसैन हमें देख रहा है। ए मेरे प्यारे आका हुसैन के दीवानों, कौन आका हुसैन? वो आका हुसैन कि
قربان کرके जिसने قربان करके नन्हा सा बच्चा हुसैन ने, कुर्बान करके नन्हा सा बच्चा हुसैन ने, और दहला दिया है अर्शे मुअल्ला हुसैन ने। और वो 22,000 थे मगर कुछ भी न कर सके, वो 22,000 थे मगर कुछ भी न कर सके। इस्लाम को बचा लिया तन्हा हुसैन ने, इस्लाम को बचा लिया तन्हा हुसैन ने। और ऐसा नहीं कि फरात के प्यासे हुसैन थे, ऐसा नहीं कि फरात के प्यारे प्यासे हुसैन थे, छोड़ा है खुद फरात को प्यासा हुसैन ने। और उम्मत के सारे सजदे बचाएगा हश्र में, उम्मत के सारे सजदे बचाएगा हश्र में। ऐसा अदा किया है वो सजदा हुसैन ने। उस आका हुसैन की महफिल में है। आओ बुखारी शरीफ की हदीस पाक समाअत करो। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम सुना होगा। ये हजरत अबू हुरैरा कौन है? ये मेरे आकाए करीम के सहाबी हैं। आलिमों से पूछो तो पता चलता है। हजरत अबू हुरैरा से बहुत सारी हदीसें रावी हैं, बहुत सारी हदीसें आपने रवायत की है। हजरत अबू हुरैरा जैसा जलील जैसा सहाबी, आकाए करीम से सच्ची अकीदत रखने वाला सहाबी हजरत अबू हुरैरा बयान करते हैं। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है कि ठंडी का मौसम था, नमाज फज्र पढ़ने के बाद मेरे दिल ने ये कहा चलो आका की ज़ियारत कर ली जाए। नमाज फज्र पढ़ करके हजरत अबू हुरैरा आकाए करीम के दरवाजे पर पहुंचते हैं, नेत बांधे हुए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। मेरे आका इरशाद फरमाते कौन? कहा आका आपका गुलाम अबू हुरैरा। आकाए करीम ने फरमाया दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। हजरत अबू हुरैरा कमरे के अंदर जाते हैं। ठंडी का मौसम है। हमारे तुम्हारे आका हसन हुसैन के नाना कंबल ओढ़े हुए, वो कंबल जिस वो नूरी चादर जिसके बारे में कुरान शाहिद है, मेरे आका अपनी जो है चादर ततहीर को ओढ़े हुए बैठे हैं। हजरत अबू हुरैरा जाते हैं, आका के कदमों को चूम कर खामोशी के साथ बैठ जाते हैं और गौर से मेरे आका को देखने लगे। मेरे आका ने फरमाया अबू हुरैरा क्या देख रहे हो? ए मेरे आका मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ, ए मेरे आका मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो बोलो अबू हुरैरा कहना क्या चाहते हो? ए मेरे आका आपके चादर के अंदर क्या चीज छुपा के रखे हुए हैं? चादर आपकी उभरी हुई है। जैसे अबू हुरैरा ने अर्ज किया, गैबदा नबी ने बाहें फैला दी। हजरत अबू हुरैरा सहाबी हैं, वहाबी नहीं। सहाबी बयान फरमाते हैं ये वहाबी कमीने तो नबी को बुरा भला कहते हैं, तो हसन हुसैन को क्यों बुरा भला नहीं कहेंगे? हजरत अबू हुरैरा सहाबी हैं, आशिक रसूल हैं। वो बयान करते हैं जब गैबदा नबी ने बाहों को फैलाया तो मैंने क्या देखा? दाहिनी रान पर हजरत इमाम हसन बैठे हैं, बाईं तरफ इमाम हुसैन बैठे हैं और मेरे आका के सीने से लगे हुए हैं। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैं दंग रह गया, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। गैबदा नबी अपने दोनों नवासों को, अपने दोनों लखते जिगर को सीने से चिमटाए हुए, चादर का कम्बल ओढ़े हुए बैठे हुए हैं, प्यार कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद हजरत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि मेरे प्यारे आका खड़े हो जाते हैं और जब मेरे आका खड़े हुए, आका हुसैन ने दौड़ करके प्यारे आका की उंगलियों को थाम लिया। मेरा भाई हमारा बच्चा हो या आपका बच्चा हो, जब अपने बच्चे को उंगली पकड़ा करके हम खड़े होते हैं तो वो बच्चा चढ़ने की कोशिश करता है ना, वो बच्चा चढ़ने की कोशिश करता है। अबू हुरैरा कहते हैं मेरे आका हुसैन को उंगली नबी ने पकड़ा दी। प्यारे हुसैन बच्चे हैं, मेरे आका के कदमों पे अपने कदम को रखा। अबू हुरैरा कहते हैं मैं दंग रह गया, ये खातिमे पैगंबरा के कदम पर फातिमा का बेटा अपना कदम रख रहा है, अली का बेटा अपना पैर रख रहा है। अबू हुरैरा कहते हैं मैं गौर से देखने लगा, हिम्मत ना हो सकी क्योंकि कुछ लब कुशाई करूं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं
اے ننھے قدم والے چڑھ آ سبحان اللہ۔ غیب داں نبی جب اس طرح فرماتے ہیں، حسین مسکراتے ہوئے نبی کے اوپر چڑھنے لگے اور چڑھتے چڑھتے ابو ہریرہ کا بیان ہے میرے آقا حسین نبی کے سینے تک پہنچتے ہیں۔ سینے مبارک، وہ سینہ جس کے بارے میں قرآن شاہد ہے، علم نشرح لکا صدرک۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے آقا کے سینے پر آقا حسین نے ننھے ننھے قدموں کو رکھا، پھر میرے آقا اور اشارہ فرماتے ہیں، حسین اوپر اور چڑھتے ہیں۔ جب میرے آقا کے منہ کے قریب پیارے آقا حسین پہنچتے ہیں، غیب داں نبی اپنی زبان مبارک کو نکالتے ہیں، حسین اپنے منہ کو کھولو۔ حسین نے منہ کھول دیا، غیب داں نبی اپنی مبارک زبان کو حسین کے منہ میں ڈال دیا اور چوسنا شروع کر دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے پیارے نبی نے زبان مبارک باہر نکالی اور منہ کو چوما، پیشانی کو چوما۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں دیکھتا رہا، اس کے بعد میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ میرا پیارا نور نظر ہے، یہ میرا لخت جگر ہے، یہ میرا خون ہے، یہ میرا نور ہے۔ اس طریقے سے ارشاد فرماتے ہیں۔ اس کے بعد کہا ابو ہریرہ میں حسین سے بڑی محبت کرتا ہوں، جو حسین سے محبت کرے گا اس نے مجھ سے محبت کیا، اور جو حسین کو راضی کر لیا اس نے مجھے راضی کر لیا، اور جس نے مجھے راضی کر لیا اس نے خدا کو راضی کر لیا، اور جو میرے حسین سے دشمنی رکھے گا وہ مجھ سے ناراض کرے گا، اور جس نے مجھے ناراض کر دیا خدا تعالیٰ اس سے غضبناک ہو جائے گا۔ یہ میرے آقا حسین کی عظمت ہے، یہ میرے آقا حسین کی جو ہے اللہ کے نبی سے پیار ہے۔ اے میرے پیارے آقا حسین کے دیوانوں، اسی پر بس نہیں بلکہ جب میرے آقا حسین کی عمر 18 و 19 سال کی ہوتی ہے تو جانتے ہو مدینے والے کس طریقے سے میرے آقا حسین سے محبت کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا حسین کی عمر غالباً 18 یا 19 سال کی ہوتی ہے، مدینے میں ایک انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، ایک صحابہ رسول دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں۔ صحابہ کرام مسجد نبی میں آ کر میٹنگ کرتے ہیں، رائے ملاتے ہیں نماز جنازہ کس سے پڑھائی جائے۔ سب لوگوں نے کہا آقا حسین سے بہتر کوئی نہیں ہے، آقا حسین سے نماز جنازہ پڑھا دی جائے۔ یہاں تک کہ لوگ جاتے ہیں اور پیارے حسین سے کہتے ہیں اے اللہ کے پیارے نبی کے پیارے نواسے، ہمارے محلے میں ایک انسان کا انتقال ہو گیا ہے، ہم سب کی مرضی یہ ہے کہ آپ ان کی نماز جنازہ ادا کر دیں، کس ٹائم نماز ہوگی؟ آقا حسین نے پوچھا، لوگوں نے ٹائم بتایا، وقت مقررہ پر پیارے آقا حسین پہنچ جاتے ہیں اور نماز جنازہ ادا کرتے ہیں جنت البقیع میں۔ اور میرے پیارے آقا حسین کے دیوانوں، جس طریقے سے ہم اور آپ قبرستان جاتے ہیں کسی مردے کو لے کر کے جنازہ دفنانے کی غرض سے، تو چپل اور یعنی چپل کو اور جوتے کو قبرستان کے باہر اتارتے ہیں، پیارے آقا حسین نے بھی اپنی نالین مبارک جنت البقیع کے باہر اتار دیا۔ سارے صحابہ کرام اپنی نالین کو باہر اتار کر کے نماز جنازہ ادا کرتے ہیں اور مٹی دے کر کے جب واپس ہونے لگے، کیا دیکھا لوگوں نے، مدینے والوں نے کیا دیکھا؟ ایک بوڑھا آدمی ہے، لاٹھی ٹیکے ہوئے ہے، صحیح چل نہیں پا رہا ہے، پیر اس کے لڑکھڑا رہے ہیں، پیر اس کے ڈگمگا رہے ہیں، صحیح سلامت چل بھی نہیں رہا، چل نہیں پا رہا ہے۔ لیکن جیسے نماز جنازہ ختم ہوتی ہے، مٹی دے کر کے لوگ واپس ہوتے ہیں، وہ بوڑھا آدمی چادر اوڑھے ہوئے تیز قدموں سے چلتا ہے اور پہنچ جاتا ہے آقا حسین کی نالین کے قریب۔ آقا حسین کی جوتی مبارک کو اٹھایا اور اپنی آستین سے اسے صاف کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ! مدینے والوں نے دیکھا، کہا یہ کون ایسا انسان ہے جو آقا حسین کے جوتی کو اپنے آستین سے صاف کر رہا ہے؟ تب تک میرے آقا حسین آ گئے، اپنی نالین پہننے کے لیے آ گئے۔ جیسے پیارے آقا حسین اپنے قدم مبارک کو اٹھاتے ہیں کہ میں اپنی نالین کو پہن لوں، وہ اللہ کے رسول کے چاہنے والے، وہ اللہ کے بندے جو تھے، انہوں نے جو صافہ باندھ رکھا تھا، اسے آپ دیکھ رہے ہیں، اسے عملہ کہا جاتا ہے۔ جلدی سے ان بوڑھے آدمی نے اپنے صافہ سے پیارے آقا کے پیر میں جو مٹی لگی تھی اسے صاف کرنے لگے۔ اب مدینے والے اور تعجب میں پڑ جاتے ہیں، یہ کون انسان ہے جو اس قدر حسین سے محبت کرتا ہے؟ سارے لوگوں نے جب اس منظر کو دیکھا، پکڑ لیا اس بوڑھے آدمی کو، اے بابا جانا نہیں، چہرے کو دکھا دو، تم کون ہو جو آقا حسین سے اس قدر محبت کرتے ہو؟ مدینے والوں نے جب اس طریقے سے عریضہ پیش کیا، اس بوڑھے آدمی نے جب چادر ہٹائی ہے تو لوگوں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے۔ دیکھا تو کیا دیکھا، یہ کوئی اور نہیں بلکہ آقا کا دیوانہ، آقا کا مستانہ، آقا کا چاہنے والا صحابہ
रसूल अबू हुरैरा हैं। हजरत अबू हुरैरा बूढ़े सहाबी, लोगों ने कहा हुसैन के साथ ऐसा क्यों सलूक किया तुमने, कितनी मोहब्बत हुसैन से तुम्हें है। झुरझुरियाँ लेकर वो बूढ़ा रोने लगा। हजरत अबू हुरैरा रोने लगे और कहा, ए लोगों मुझसे पूछते हो कि हुसैन से इतनी मोहब्बत क्यों करते हो? अरे मेरी इन्हीं आंखों ने देखा है, मेरे इन्हीं कानों ने सुना है, गैबदा नबी के गोद में हुसैन बैठे थे। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया था, ए लोगों जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करेगा समझो उसने मुझसे मोहब्बत किया, जो हुसैन को राजी कर लेगा उसने मुझे राजी कर लिया। मैं हुसैन को खुश कर रहा हूँ ताकि हुसैन के सदक़े मेरा आका भी मुझसे खुश हो जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये वो प्यारे आका हुसैन के चाहने वाले हैं। मदीने वाले आका हुसैन से बहुत प्यार करते थे, बहुत चाहते थे। ए मेरे आका हुसैन के दीवानों, घबराना नहीं, परेशान मत होना। आज सदाकत का बयान तुम्हें सुनना है। जितनी देर मैं चाहूँ, जितनी देर तुम लोग चाहोगे उतनी देर तक ये गुलाम, ये अब्दुल कादिर खान हशमती आपकी खिदमत करेगा। ए मेरे प्यारे आका हुसैन के दीवानों, बात आ गई है मदीने की और आका हुसैन से प्यार करने की, तो एक हदीस और सुनो। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम तुमने सुना होगा और इंशाअल्लाह कल मैं ये कोशिश करूंगा कि कल हजरत उमर फारूक आजम और उस्मान गनी यानी दो सहाबे कराम का कल ही बयान कर दूं, क्योंकि ताकि उधर मुझे ज्यादा वक्त मिल जाए तो फिर करबला की दास्तान आराम से बहुत सुकून के साथ पढ़ने को भी मिले और तुम्हें सुनने को भी मिले। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ुर रहमान अगर जिंदगी बाकी रही तो कल इंशाअल्लाह अदालत और सखावत का बयान तुम्हें सुनना है। लेकिन बात आई है तो सुनो। हजरत उमर के लड़के का नाम अब्दुल्ला है। हजरत अब्दुल्ला की उम्र 8-9 साल की है। सरकारे इमाम हुसैन की उम्र 7 साल की है। ये भी बच्चे हैं, वो भी बच्चा है। हजरत उमर का लड़का अब्दुल्ला खजूरों के बाग में है, खजूरों का मौसम है, खजूर पेड़ से गिर रहे हैं। अब्दुल्ला खजूरें इकट्ठा कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। प्यारे आका हुसैन भी उस बाग में पहुंच जाते हैं और 2-4 खजूरें उठा ली। उस वक्त हजरत उमर फारूक आजम मदीने के गवर्नर और हाकिम और खलीफा थे। खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। हजरत इमाम हुसैन बच्चे हैं, 2-3 खजूरें उठा ली। अब्दुल्ला ने देखा, कहा हुसैन खजूरें वहीं रख दो, खजूरें वहीं रख दो, बच्चे हैं दोनों। आका हुसैन ने कहा, ए अब्दुल्ला कैसी बात करते हो, अगर 2-4 खजूरें मैंने उठा ली तो क्या आपका कम पड़ जाएगा? अरे खाने पीने की चीज है, मैंने ले लिया, आप इतना नाराज क्यों होते हो? अब्दुल्ला बड़े तेज में आ जाते हैं और तेजी के साथ वो बोलने लगे, नहीं नहीं हुसैन, मैंने कह दिया ना खजूरें वहीं रख दो, और तुम मुझे जानते नहीं हो, खजूरें वहीं रख दो। कहा, हाँ मैं जानता हूं तुम्हारा नाम अब्दुल्ला है। कहा, मुझे जानते हो मगर मेरे बाप को हुसैन तुम नहीं जानते। कहा, कौन है तुम्हारे बाप? कहा, कौन है तुम्हारे बाप? बच्चे हैं दोनों। इमाम हुसैन ने फरमाया, कौन है तुम्हारा बाप? कहा, हमारे बाप वो हैं जिनका नाम सुन करके इब्लीस पनाह मांगता है, जिनका नाम सुन करके इब्लीस कांप जाता है, और जिनके खौफ और दबदबे से शेर और बकरी एक जगह पानी पीते हैं, हिम्मत नहीं कि शेर बकरी पर हमला कर दे। हमारे बाप खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, मदीना के हाकिम हैं, खलीफा हैं। कहा, क्या नाम है तुम्हारे बाप का? कहा, मेरे बाप का नाम उमर है। कहा, अच्छा अच्छा अब्दुल्ला, तुम उमर के लड़के हो? कहा, हाँ मैं उमर का लड़का हूं। तेईस में अब्दुल्ला आते हैं। प्यारे आका हुसैन ने क्या कहा? जवाब सुनो, ईमान ताजा हो जाएगा। प्यारे आका हुसैन बोलते हैं, अच्छा अब्दुल्ला तुम उमर के लड़के हो? अरे वो उमर जो हमारे नाना के गुलाम हैं। कह दो सुभान अल्लाह। आका हुसैन ने कह दिया, अच्छा वो उमर जो मेरे नाना के गुलाम हैं। अब्दुल्ला को और गुस्सा आ गया और भड़क गए, ये मेरे बाप को अपने नाना का गुलाम कह दिया। गुस्से में इतने आपे से बाहर हुए अब्दुल्ला कि बाग से भागे, सीधे घर आए और सर से पैर तक चादर तान करके लेट जाते हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आते हैं, बेटा अब्दुल्ला तू बाग गया था खजूरों को इकट्ठा करने के लिए, तू घर पे क्यों लेटा है? कहा, अब्बा जी दिमाग बहुत खराब है मेरा। कहा, क्या हुआ? कहा, आज झगड़ा करके आया हूं, तकरार हो गई। कहा, किससे तकरार करके आया? कहा, वो अली का लड़का हुसैन, उनसे हमारी तकरार हो गई।
हज़रत उमर जैसे इतना सुनते हैं सहम जाते हैं। उठाया बेटे को, बेटा क्या बात हुई, हुसैन से तेरी तकरार कैसे हुई? कहा अब्बा जी हुसैन ने खजूरें उठाई, मैंने कहा रख दो, बात ज़्यादा बढ़ी तो तैश में आकर के मैंने कह दिया ए हुसैन तुम जानते नहीं मेरा बाप यहाँ का हाकिम है, मैं उमर का लड़का हूँ। ए अब्बा जी जैसे मैंने कहा मेरे बाप का नाम उमर है तो हुसैन मुस्कुरा करके बोलते हैं हाँ हाँ वो उमर जो मेरे नाना के गुलाम हैं। अब्बा जी बताओ आपको अपने नाना का नौकर कह दिया, आपको आपके अपने नाना का गुलाम कह दिया। हजरत उमर ने कहा अच्छा हुसैन ने ऐसा कहा है बेटा? कहा बेशक ऐसा कहा है। पकड़ा अब्दुल्ला के लड़के को, कहा चलो हुसैन से पूछा जाए, हुसैन ने ऐसा कहा है सच कहते हो? कहा बिल्कुल सच कहता हूं। अब रास्ते में अब्दुल्ला सोच रहे हैं हुसैन की शिकायत मैंने अपने बाप से कर दी है, हमारे बाप हुसैन को डांटेंगे और हुसैन के अब्बा और अम्मा तक शिकायत पहुंच जाएगी। रास्ते में बहुत खुश हो रहे हैं अब्दुल्ला और मस्ती में झूमते हुए बाप की उंगली पकड़े हुए अली के घर की तरफ चल देते हैं। दरवाजे पर हजरत उमर पहुंचते हैं, आवाज देते हैं ऐनल अली कहां हो? हजरत अली उस वक्त मौजूद ना थे। प्यारे आका हुसैन घर से बाहर निकले, देखा कि खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हैं। आप आका हुसैन ने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या अमीरुल मोमिनीन। हजरत उमर ने जवाब दिया, कहा बेटा हुसैन करीब आओ। प्यारे आका हुसैन करीब आ गए। कहा ये बताओ अब्दुल्ला से तुमसे कुछ तकरार हुई, क्या हुआ था? कहा अपने बेटे से पूछ लो ना क्या बातें हुई थी। कहा बेटे ने बता दिया, लेकिन ए हुसैन मैं आपकी जबान से सुनना चाहता हूं क्या बातें हुई। आज इमाम हुसैन ने बताया कि बात बढ़ते बढ़ते इन्होंने कह दिया कि हमारे बाप का नाम तुम नहीं जानते, हमारा बाप बहुत दबदबे वाला है, मेरे बाप के डर से शेर और बकरी एक जगह पानी पीते हैं, हमारे बाप का नाम सुनकर के इब्लीस कांपने लगता है, मेरे बाप का नाम उमर है। इस तरह आपके लड़के ने तैश में आकर के कहा ठीक है बेटा, और अब्दुल्ला ने कहा यह बात मैं मानता हूं, लेकिन तुमने क्या कहा? कहा तो मैंने भी कह दिया हाँ हाँ वो उमर जो मेरे नाना के गुलाम हैं। कहा अच्छा तुमने ऐसा कहा है? कहा बेशक मैंने ऐसा कहा है। आका हुसैन ने कहा बेशक मैंने ऐसा कहा है। हजरत उमर ने कहा तो क्या तुम इसको लिख के भी दे सकते हो? कहा उमर तुम्हें मालूम नहीं मैं अहले बैत हूं, अहले बैत जो जबान से कहता हूं वही मैदान में भी कहता हूं। फौरन अंदर जाते हैं और एक कागज लिया और कलम लिया, उस पे लिखा हाँ हाँ उमर तुम मेरे नाना के गुलाम हो, हाँ हाँ उमर तुम मेरे नाना के गुलाम हो, हाँ हाँ उमर तुम मेरे नाना के गुलाम हो। 3 मरतबा लिखा और सीना तान करके इमाम हुसैन खड़े हो गए। लो उमर मैंने लिख दिया, जो जबान से मैंने कहा वो मैंने तहरीर कर दिया है। हजरत उमर ने जब पर्चे को देखा उसमें लिखा है हाँ हाँ उमर तुम मेरे नाना के गुलाम हो। हजरत उमर उस पर्चे को लेते हैं और मुंह से लगाते हैं, आंखों से लगाते हैं, सर पे रख लेते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत उमर अपने बेटे के हाथ को पकड़ा, वापस चले आते हैं। अब्दुल्ला घबरा गए, अब्बा तो आए थे शिकायत करने के लिए, हुसैन को कुछ कहा भी नहीं, ऐसे पलट आए। 2 दिन के बाद जुमा का दिन आया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी में मिंबर रसूल पर खड़े होकर तकरीर करते हैं, तकरीर कर रहे हैं, खुतबा दे रहे हैं, लोगों को इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं, लोगों को इस्लाम की बातें बता रहे हैं। बताते बताते तकरीर करते करते आपने जेब में हाथ डाला और डालने के बाद आका हुसैन के हाथ का लिखा हुआ पर्चा निकाला और मदीने वालों को दिखाया, सहाबे कराम को दिखाया। देखो देखो ये मैंने अपने हाथ से नहीं लिखा है बल्कि अली के बेटे आका हुसैन ने लिखा है। ए मेरे जानिसार चाहने वालों, ये मुझसे मोहब्बत करने वालों, मैं भरे मजमे में ऐलान कर रहा हूँ, मैं भरे मजमे में सबको वसीयत कर रहा हूँ कि जब मैं मर जाऊं तो ये पर्चा मेरे सीने पे रख दिया जाए। सुभान अल्लाह। मैं
ये पर्चा मेरे सीने पर रख दिया जाए ताकि जब आकाए करीम की बारगाह में मेरी हाजिरी हो ये हुसैन के हाथ से लिखा हुआ पर्चा आकाए करीम के सामने पेश करके अर्ज करूं, ए मेरे प्यारे आका, आपके नवासे ने आपके गुलाम होने का सनद दे दिया है, आपका गुलाम होने की सनद दे दी है। अल्लाहु अकबर। इस तरीके से आका हुसैन से मदीने वाले प्यार करते थे, इस तरीके से आका हुसैन से लोग मोहब्बत करते थे। ए मेरे भाई, कल आप हज़रात ने सुना कि 63 साल जिंदगी बज़ाहिर आकाए करीम की दुनिया में गुजरी, उसके बाद मेरे प्यारे आका पर्दा फरमा गए। जब प्यारे आका दुनिया से चले जाते हैं, बज़ाहिर निगाहों से रुपोश हो जाते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक कुर्सी खिलाफत पे बैठते हैं और अल्लाह के प्यारे नबी के फरमुदात पर अमल करते हुए लोगों को इस्लाम की तबलीग करना शुरू कर देते हैं। यह हजरत अबू बकर इब्ने कहाफा कौन है? इन्हें सिद्दीक और अतीक इनका लक़ब है। ए मेरे प्यारे आका हुसैन के दीवानों, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किस तरीके से ईमान लाए, कितने दिन तक आप जो है जिंदगी में रह करके खिलाफत की बागडोर को संभाला, कितने दिनों के बाद आप पर्दा फरमाए, ये सारी दास्तान आपको बड़ी तेजी के साथ सुनना है क्योंकि टाइम कम है, बातें ज्यादा है। ए मेरे आका हुसैन के दीवानों, जब मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल की हुई, रब का हुक्म होता है, ए मेरे प्यारे नबी नबूवत का ऐलान कर दो। फारान की चोटी पर मेरे आका खड़े हुए, उससे पहले मक्के वालों को बुलाकर खूब खिलाया, खूब पिलाया, खूब दावत की। उसके बाद फारान की चोटी पर अल्लाह के प्यारे नबी खड़े होते हैं और इरशाद फरमाते हैं, इन्नी अब्दुल्लाही आतानियल किताबा व जालनी नबिया। ए लोगो, मैं अल्लाह का नबी हूँ, रब ने मुझे किताब अता की है, अल्लाह ने मुझे नबी बना करके भेजा है। बुत झूठे हैं, बुतों की पूजा करना छोड़ दो, बुतों की प्रस्तिश करना छोड़ दो। खुदा एक है, खुदा वो है जिसने तुम्हें पैदा किया, जिसने हमें पैदा किया, जिसने लोहो कलम को पैदा किया, जिसने जमीनो समा को पैदा किया, जिसने ई आ को पैदा किया, जिसने सारी कायनात को पैदा किया, उसकी इबादत करो। जब अल्लाह के नबी ने इस्लाम की तबलीग शुरू की थी ना, तो जानते हो यही मक्का वाले जहां मेरे आका पैदा हुए, जहां मेरे आका ने 40 साल जिंदगी गुजार दी, यही मक्का वाले खाना खा के, दावत खा के मेरे आका को गालियां देना शुरू कर देते हैं, मेरे आका को बुरा भला कहने लगते हैं। कोई नबी पर पत्थर मारता है, ये तो दीवाना हो गया, ये तो पागल हो गया, ये अपने आप को नबी कहता है, नया धर्म लेकर के आया है, इस्लाम की तबलीग करने आया है। कोई मेरे आका को मजनू कह रहा है, कोई पागल कह रहा है, कोई जादूगर बता रहा है। इस तरीके से मेरे आका को लोग कहते हुए वापस हुए थे। किताबों में मैंने यहां तक पढ़ा है कि कुछ लोगों ने तो बुरा भला कह करके वापस हुए। जानते हो मेरे भाई, इस्लाम की तबलीग आकाए करीम ने किया तो मक्के वाले जहां आप पैदा हुए थे सब दुश्मन हो जाते हैं। उस वक्त हजरत अबू बकर मुल्क शाम गए थे तिजारत करने के लिए। अबू बकर मेरे आका के बहुत गहरे दोस्त थे, मेरे आकाए करीम के साथी थे। गैबदान नबी भी बहुत प्यार करते थे हजरत अबू बकर से। अबू बकर इब्ने कहाफा मुल्क शाम गए थे तिजारत करने के लिए। जिस दिन मेरे आका मक्के में नबूवत का ऐलान करते हैं, उसी रात में हजरत अबू बकर ने ख्वाब देखा। क्या ख्वाब देखा कि आसमान के चांद और सितारे सब मेरी गोद में आ गए हैं, मैंने उन्हें पकड़कर सीने से लगा लिया है, मुझे बड़ा सुकून मिल रहा है। ये ख्वाब उन्होंने जब देखा, सुबह सवेरे उठते हैं, लोगों से मशवरा किया, अपने साथियों से पूछा, ये बताओ मैंने ऐसा ऐसा ख्वाब देखा है, हाय कोई इस इलाके में जो इस ख्वाब की ताबीर बता दे कि इसका मतलब क्या हो सकता है, इसका फाल खोल करके हमें बता दे कि इस अपनी जबान में समझो मेरे भाई। उस अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि हाय कोई ऐसा आदमी जो इसकी ताबीर हमें बता दे, इसका मतलब हमें बता दे। एक इंसान ने कहा, वो देखो गिरजाघर सामने नजर आ रहा है, वहां एक बहुत बड़ा पादरी है। पादरी किसे कहते हैं जानते हो? ईसाइयों में जो ज्यादा काबिल आलिम मौलाना होता है उसे पादरी कहा जाता है। लोगों ने बताया गिरजाघर में चले जाओ, यहाँ एक पादरी साहब रहते हैं, वो सब कुछ बता देते हैं। अबू बकर सिद्दीक जाते हैं और जाने के बाद उस पादरी से कहा कि मैंने रात में ऐसा ऐसा ख्वाब देखा है, इसकी वजह क्या हो सकती है? उस पादरी ने जो सर को झुकाए हुए बैठा था, सर को उठा करके अबू बकर के चेहरे को देखता है, कहा ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है, पहले नाम बताओ। कहा मेरा नाम अबू बकर इब्ने कहाफा है। कहा तुम रहने वाले कहाँ के हो? कहा मैं मक्के से आया हूँ। कहा कौन मक्का? जो खजूरों के झुरमुट में आबाद है।
कहा हाँ हाँ उसी मक्के से मैं आया हूँ। कहा तुम किस खानदान से ताल्लुक़ रखते हो? कहा बनी हाशिम के खानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ। कहा काम क्या करते हो? कहा तिजारत का काम करता हूँ। जैसे अबू बकर इतना कहते हैं वो पादरी अपनी जगह से खड़ा होकर के और अबू बकर सिद्दीक के हाथों को चूम लेता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक परेशान हो जाते हैं। उस पादरी ने कहा मुबारक हो। कहा किस बात की मुबारकबाद दे रहे हो? कहा नबी आखिरुज़्ज़मान ने नबूवत का ऐलान कर दिया है, नबी खातिमे पैगंबरान ने नबूवत का ऐलान कर दिया है, और तौरेत और ज़बूर किताबों में जो लिखा है उससे मुझे पता चला है कि जो होगा पहला खलीफा आका का होगा, उसका अबू बकर नाम होगा, वो तिजारत का काम करने वाला होगा, वो बनी हाशिम खानदान से ताल्लुक़ रखने वाला होगा। ए अबू बकर मुबारक हो, तुम नबी का कलमा पढ़ के मुसलमान होगे और नबी के सबसे पहले खलीफतुल मुस्लिमीन बनोगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक अचंभे में पड़ जाते हैं। मैं यहाँ आया था जो है ख्वाब की ताबीर मालूम करने, और ये ऐसा कह रहा है। वो पादरी कहता है ए अबू बकर जरा कान मेरे मुंह के करीब करो, मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। अबू बकर सिद्दीक ने कान को करीब किया। उसने कहा कसम है खुदाए वादहू ला शरीक की, जब से तौरेत और ज़बूर में उस नबी के बारे में मैंने पढ़ा है, मैं बगैर नबी को देखे हुए नबी का कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया हूँ। लेकिन चुपके से अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, नबी से भी मोहब्बत करता हूँ। जाहिर इसलिए नहीं करता हूँ कि मैं ईसाई जो मेरे साथी हैं वो मुझ पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ देंगे। लेकिन जाओ जल्दी करो मक्का पहुंचो और आकाए करीम के दामन से लग करके सीधे रास्ते पर आ जाओ। अबू बकर के होश और हवास गुम हो जाते हैं। उसी जगह पर मुल्क शाम में अपने तिजारत का माल औने पौने जल्दी से बेचा और घबराए हुए भागते हुए जल्दी से मक्का पहुंचते हैं। और जैसे मक्के में हजरत अबू बकर कदम रखते हैं, उतबा शैबा अबू जहल अबू लहब ये सड़े हुए काफिर मिल गए। ए अबू बकर, तुम्हारा दोस्त जो मोहम्मद अरबी है अब्दुल्ला का बेटा, वो नया दीन का इजाद कर रहा है। वो तो कहता है मैं नबी हूँ। अरे वो तुम्हारा कैसा दोस्त है, जाओ उसे समझाओ। आखिरकार वो तो अजीब बातें कर रहा है। इस तरीके से कहा अब उतबा शैबा ने। लेकिन अबू बकर सिद्दीक कुछ नहीं बोलते हैं। सीधे घर आए, जो ज़ादे राह सामान था रखा और लोगों से पूछा मेरा दोस्त मोहम्मद अरबी कहाँ हैं, अब्दुल्ला के बेटे कहाँ हैं। लोगों ने बताया फला जगह पर मौजूद है। गैबदा नबी के सामने जैसे अबू बकर सिद्दीक पहुंचते हैं, आकाए करीम खड़े हो जाते हैं और ज़बाने मुबारक जुम्बिश करते हुए इरशाद फरमाते हैं अहलन व सहलन मरहबा, अहलन व सहलन मरहबा। अबू बकर आओ, अबू बकर आओ। अबू बकर आगे बढ़े, बिठाया मेरे आका ने बराबर में और कहा अबू बकर ने कहा ए मेरे प्यारे दोस्त, ए मेरे प्यारे साथी, मैंने सुना है कि तुमने नबूवत का ऐलान किया है, मैंने सुना है कि अपने आप को आप नबी कहते हैं। अबू बकर सिद्दीक की बात को सुनकर गैबदा नबी कहते हैं अबू बकर बिल्कुल सच तुमने सुना है, बिल्कुल सच तुमने सुना है, और अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर दुनिया में भेजा है, इसलिए मैंने नबूवत का ऐलान किया है। अबू बकर खामोश हो जाते हैं, फिर दबी हुई जबान में धीरे से कहते हैं ए मेरे आका, ये बताओ जो नबी होता है वो कोई मोजिज़ा दिखाता है, आप भी कोई मोजिज़ा दिखाइए ना। गैबदा नबी जैसे इतना सुनते हैं कहा ए अबू बकर, क्या इससे बड़ा कोई मोजिज़ा हो सकता है? एडवांस में पहले बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ए अबू बकर, क्या इससे बड़ा कोई मोजिज़ा हो सकता है जो मुल्क शाम में तुम ख्वाब देख करके आए हो और पादरी से हालात मालूम करके आए हो। सुभान अल्लाह। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, और जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। अबू बकर सिद्दीक फौरन कदम पे गिरते हैं और नबी का कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फौरन आकाए करीम ने उसी जगह पर कहा अबू बकर आज से तुम सिद्दीक हो, अतीक हो। मेरे आका ने ये लक़ब दे दिया, अबू बकर सिद्दीक और अतीक लक़ब मेरे आका ने दिया है। अब हज़रत अबू बकर जब ईमान ले आए तो मेरे आका से कहते हैं ओ गैबदा नबी, तब अब चुपके ऐलान न करो, बल्कि खुल्ला इस्लाम की तबलीग की जाए।
जाए। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया नहीं अबू बकर, नहीं नहीं, अभी 40 लोग मुसलमान हुए हैं, जिसमें बेचारी कुछ औरतें भी हैं, कुछ बच्चे हैं, कुछ जवान, कुछ बूढ़े हैं। अभी ऐलान न किया जाए, अभी खुल्लम खुल्ला इस्लाम की तबलीग न की जाए। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं ठीक है मेरे आका, जैसे आप हुक्म करें। मेरे प्यारे आका के कदमों को चूम करके अबू बकर सिद्दीक पलटे और जैसे हरम के करीब पहुंचे, यहाँ ये कमीने उतबा, शैबा, अबू लहब, अबू जहल ये इंतजार कर रहे थे कि अबू बकर गए हैं अपने दोस्त को समझाने के लिए, समझा करके आ रहे होंगे, उनसे हालात मालूम कर लिया जाए। ए मेरे भाई, जैसे अबू बकर सिद्दीक आते हैं, उतबा बोलता है क्या हुआ, तुम्हारे दोस्त का क्या हाल है, क्या हुआ, तुम तो समझाने गए थे, आखिरकार उन्होंने तुम पर भी तो कोई जादू नहीं कर दिया? मैंने पहले ही कहा था वो जादूगर हैं। जैसे जादूगर कहा है उतबा शैबा ने, हजरत अबू बकर का जोश ईमानी जोश में आता है और जोर जोर से उन कमीनों के सामने कलमा पढ़ना शुरू कर देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक कलमा पढ़ने लगते हैं। जब कलमा पढ़ने लगे, अब अबू बकर सिद्दीक को देख करके सब दंग रह जाते हैं। ये तो गया था अपने दोस्त को समझाने के लिए, लेकिन ये उन्हीं का होकर के रह गया। अबू बकर के पीछे आते हैं और हरम के अंदर घेर लिया जाता है अबू बकर सिद्दीक को, और तमाम मक्के के काफिर आ जाते हैं। एक जालिम आगे बढ़ा और अबू बकर सिद्दीक को उठाकर जमीन पे पटक दिया, अल्लाहु अकबर कबीरा, और मारना शुरू कर दिया। अबू बकर सिद्दीक को बेतहाशा मारा जा रहा है। देखो किस तरीके से वो मुसलमान थे और आज हम किस तरीके से मुसलमान हैं। क्यों मारा जा रहा है? इसलिए मारा जा रहा है कि तू ईमान क्यों ले आया, तू मुसलमान क्यों बन गया, तू नबी के दामन से क्यों लग गया। यहां तक कि मारते मारते हजरत अबू बकर सिद्दीक बेहोश हो जाते हैं। उन काफिरों ने सोचा शायद अबू बकर दुनिया से चला गया। जब आप बेहोश हो गए, लोगों ने समझा ये मर गया, सब वापस चले जाते हैं। अबू बकर सिद्दीक के खानदान वालों को जब पता चला, अबू बकर को उठाते हैं और उठा करके लेकर के चले तो ऐलान किया अबू बकर के खानदान वालों ने, ए लोगों, मक्का वालों, सुनो सुनो, अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया ना तो ईंट से ईंट बजा दूंगा, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। ये कह करके अबू बकर को लेकर के घर पे आए। पूरे खानदान वाले देखने आ रहे हैं। अबू बकर के चेहरे पर पानी का छींटा डाला जाता है। जैसे अबू बकर सिद्दीक को होश आता है, जैसे आंखें खोलते हैं सिद्दीक अकबर, फौरन पूछते हैं ये लोगों मेरे आका कहाँ हैं, मेरे आका की खैरियत बता दो। सारे लोग नाराज हो जाते हैं। ये देखो उन्हीं का कलमा पढ़ा तो मारा गया। अभी जब आंख खोलता है और होश आता है, फौरन नबी के बारे में पूछता है, फिर आप पर गशी तारी हो जाती है। यहां तक कि खानदान वाले गुस्सा होकर के अपने अपने घर चले गए। जिनके लिए इतना मारा गया, होश में आते ही उन्हीं का नाम लेता है। सारे लोग चले गए, लेकिन माँ माँ होती है प्यारो। माँ अपने लाल के सर को गोद में रखे हुए बैठी हुई है। अबू बकर की गोद को, अबू बकर के सर को माँ उनकी अपने गोद में रखे हुए बैठी हुई बड़ी मोहब्बत और हसरत भरी निगाहों से अपने बच्चे के चेहरे को देख रही है। यहां तक कि दिन का आलम गुजर जाता है। जब शाम का टाइम होता है, अबू बकर सिद्दीक को जब होश आया और जैसे अपनी माँ के चेहरे को देखा, अम्मी जान मेरे आका का पता बता दो। उस वक्त अबू बकर की माँ ईमान नहीं लाई थी। माँ ने कहा बेटा कैसी बात करता है, दिन भर तू बेहोश पड़ा रहा, जालिमों ने इतना मारा है तुझे और तू इस वक्त पूछ रहा है रात के आलम में कि मोहम्मद अरबी का पता बता दे। ए बेटा मुझे नहीं मालूम है, मगर चल मेरे लाल खाना खा ले, पानी पी ले। अबू बकर सिद्दीक ने कहा माँ कसम है खुदाए वहदहू ला शरीक की, जब तक मैं अपने आका के चेहरे का दीदार नहीं कर लूंगा मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं पानी नहीं पीऊंगा। इस तरीके से अबू बकर सिद्दीक ने कसम खा ली। अब माँ माँ होती है, माँ की ममता मचलती है, हाय मेरा लाल इतना मारा भी गया और खाना भी खाने से इनकार है, अब मैं क्या करूं। ए बेटा ले खाना खा ले, सुबह तेरे नबी को तलाश करके उनके हवाले कर दिया जाएगा। अबू बकर ने कहा नहीं नहीं, जब तक मैं आका से मिलूंगा नहीं, एक लुकमा भी हलक के नीचे नहीं उतारूंगा। अबू बकर की माँ मजबूर हो गई और कहा बेटा कैसे पता चलाया जाए कि तुम्हारे आका कहाँ हैं। हजरत अबू बकर ने कहा हजरत उमर की बहन उम्मे जमील को बुलाओ, उन्हें पता होगा। कह दो सुभान अल्लाह। हजरत उमर की बहन हजरत उम्मे जमील को बुलाया जाता है। हजरत उम्मे जमील से
हज़रत उम्मे जमील ईमान ला चुकी थी। अबू बकर ने कहा, ए मेरे रिश्ते की बहन, इस्लामी रिश्ते की बहन, ये बताओ मेरे आका कहाँ हैं, मेरे आका का पता बता दो, बताओ तुम्हें तो ज़रूर मालूम होगा। हज़रत उमर की बहन उम्मे जमील डर जाती, कांपने लगती हैं। अरे ये तो शोहरत कर रहे हैं, ये तो जाहिर कर रहे हैं कि मैं भी मुसलमान हो गई हूँ। इशारा किया अबू बकर ने कि तुम्हारी अम्मा मौजूद है, तुम्हारे घर के लोग मौजूद हैं, ये तुम क्या कह रहे हो। अबू बकर तेज आवाज में बोलते हैं, ए उम्मे जमील, डरने की बात नहीं है। जब नबी का दामन तुमने थाम लिया और नबी का मैंने दामन थाम लिया तो डरने की बात नहीं है। बताओ मेरे आका का पता बताओ। अब उम्मे जमील ने कहा, हाँ हाँ मुझे पता है मेरे आका कहाँ हैं। हजरत अरकम के घर पे मेरे प्यारे आका आराम फरमा है। उम्मे जमील से अबू बकर ने कहा, चलो मुझे लेकर के चलो, मैं आका की ज़ियारत करना चाहता हूँ। उनकी माँ और उम्मे जमील सहारा देती हैं और रात ही के आलम में गैबदा नबी की बारगाह में हाजिरी देते हैं अबू बकर और कदम पे गिरते हैं, कदमों को चूमते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सीने से लगाते हैं। ए मेरे प्यारे दोस्त, मैंने कहा था ना कि अब अभी अलल ऐलान इस्लाम की तबलीग ना किया जाए, मगर देखो देखो तुम पर इन जालिमों ने जुल्म किया है। खैर ठीक है, वो जालिम है, जुल्म करते हैं, हम लोग साबिर हैं, हम लोगों को सब्र करना चाहिए। अल मुख्तसर यूं सुनो प्यारे मेरे भाई कि आकाए करीम के प्यारे चहीते सहाबी हजरत अबू बकर सिद्दीक जब तक जिंदा रहे मेरे आका के साथ रहे, मेरे आका का साथ देते रहे। ए मेरे प्यारे आकाए करीम के दीवानों, अब धीरे धीरे कुछ मुसलमान और होते हैं, यहाँ तक कि मक्के के लोग मेरे आका के जानी दुश्मन बन जाते हैं। मेरे आकाए करीम के जानी दुश्मन बन गए। मेरे आका को जगह जगह तंग किया जा रहा है। मेरे आका का ये मैंने तो किताबों में यहाँ तक पढ़ा है कि मेरे आका काबा शरीफ के चौखट पर बैठे हुए थे, अबू जहल कमीने ने खींच करके पत्थर मारा था। हजरत हमजा बेकरार हो गए थे कि मेरे भतीजे को तूने मारा है। यहाँ तक कि ये दूसरी बात है, ये दूसरा मौजू है मेरे भाई, मैं इधर उधर मौजू पर कोई बहस करना नहीं चाहता। अल मुख्तसर यूं सुनो, अल्लाह की बारगाह में प्यारे आका ने अरीजा पेश किया, मौला ये मक्के वाले सब दुश्मन हो चुके हैं, मौला अब मैं क्या करूं। रब ने फरमाया, ओ मेरे प्यारे महबूब, अब तुम मक्का छोड़ करके हिजरत कर जाओ। गैबदा नबी ने अबू बकर से बताया, हे अबू बकर, रब का हुक्म आने वाला है, जिस दिन अल्लाह का हुक्म आएगा उसी दिन मक्का छोड़कर हम चले जाएंगे। अरे किस तरीके से अबू बकर मेरे आका से मोहब्बत करने वाले हैं। जिस दिन से उन्होंने सुन लिया कि अल्लाह का हुक्म नाजिल होने वाला है, अल्लाह का फरमान नाजिल होने वाला है, अल्लाह का हुक्म आने वाला है, हजरत अबू बकर कहते हैं, कसम है खुदाए वादहु ला शरीक की, तब से मैं सोया नहीं। इसलिए नहीं सोया, रात में कहीं अल्लाह का हुक्म आ गया तो नबी जब चलेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे आवाज दे और मैं सोता हुआ मिलूं। इसलिए रात रात जागा करते थे, पता नहीं किस टाइम आकाए करीम आकर के मुझे आवाज दे दे। अल मुख्तसर यूं सुनो कि वो दिन आ ही गया। मेरे आका के घर को जालिमों ने घेर लिया, मेरे प्यारे आका के काशाने नबूवत को घेर लिया। हजरत अली मेरे आका के दामाद मौजूद थे घर पे। मेरे प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, अली मेरे बिस्तर पर लेट जाओ। ए मेरे भाई, हजरत अली से और मेरे आका से बहुत सारी बातें हुई। अगर मैं उस तरफ चला गया तो घंटों टाइम निकल जाएगा। बस ये सुनो, हजरत अली को बिस्तर पर लिटा दिया आका ने और कहा, जो यहाँ अमानत लोगों की मेरे पास है, इन्हीं को वापस करके मदीना चले आना। हम मेरे प्यारे आका एक मुट्ठी मिट्टी उठाते हैं और पढ़ते हैं उस मिट्टी के ऊपर, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, पढ़ करके फूंका और काफिरों के ऊपर फेंका। मेरे प्यारे आका उन्हीं काफिरों के बीच से निकल जाते हैं, किसी को दिखाई नहीं पड़ते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा है, हसीनों को अंदाज सिखाया नहीं जाता, हसीनों को अंदाज सिखाया नहीं जाता और गुस्ताख को नबी दिखाया नहीं जाता। मेरे आका उन्हीं जालिमों के बीच से निकलते हैं, अबू बकर के दरवाजे पर आए। अबू बकर, हाँ आका, लब्बैक या रसूल अल्लाह, हाजिर हूँ। मेरे आका जल्दी, मेरे आका के फरमान पर फौरन लब्बैक कहते हुए बाहर निकलते हैं। मेरे प्यारे आका ने फरमाया, चलो अबू बकर, रब का फरमान हो चुका है, मक्का छोड़ करके मुझे मदीने की तरफ सफर करना है, चल देते हैं। मेरे प्यारे आका और हजरत अबू बकर
सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ए मेरे प्यारे आका हुसैन की महफिल में आने वालों, कुछ दूर जाने के बाद जब सुबह की सफ़ेदी नमूदार होने लगी, हज़रत अबू बकर ने अर्ज़ किया, मेरे आका दिन में सफ़र ना करें, कहीं ठहर जाया जाए, फिर रात को सफ़र जारी किया जाएगा। हज़रत अबू बकर ने सर उठा करके देखा, ए भोला मुसलमान, उस वक्त हज़रत अबू बकर की उम्र 52 साल की थी। अब 52 साल के आदमी को न तुम बूढ़ा ही कह सकते हो और न कड़ियल नौजवान ही कह सकते हो। हाँ, जवानी की मंजिल तय करके बुढ़ापे पे कदम रखने वाले थे। हजरत अबू बकर ने पहाड़ की तरफ देखा, 5000 फीट ऊंचा वो पहाड़ है। अबू बकर ने गौर से रास्ते को देखा, कांटादार रास्ता, पथरीला रास्ता। मेरे प्यारे आका हुसैन के दीवानों, मेरे आका हुसैन से मोहब्बत करने वालों, गौर करो, 52 साल की उम्र, 52 साल की उम्र हजरत सिद्दीक अकबर की है। ए मेरे आका, आप मेरे कंधे पे सवार हो जाए, आपका गुलाम पहाड़ पे चढ़ा करके पहुंचा देगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। कैसे मुसलमान अबू बकर सिद्दीक हैं, गैबदान नबी को अपने कंधे पर बिठाया 52 साल की उम्र में और 5000 फीट की ऊंचाई पर लेकर के सिद्दीक अकबर पहुंचते हैं। इन हाजी साहब ने गारे सौर देखा होगा, वो हाजी साहब ने भी गारे सौर देखा होगा। ये जो हाजी है उन्होंने जाकर के गारे सौर को देखा था, देखा होगा। गार के माने जो है, गार होता है, सौर उस पहाड़ का नाम है और इसे गारे हवाम भी इसी को कहा जाता है। ऊंचाई पर अबू बकर सिद्दीक जब पहुंचते हैं, आकाए करीम को कंधे से उतारा, मेरे आका आप ठहर जाएं, मैं अंदर जाकर साफ सफाई कर दूं। वाकया सुनाना मकसद नहीं है, इमाम साहब से अक्सर वाकया सुनते रहते होंगे, हाफिज साहब वाकया तुम्हें बताते रहे होंगे, लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूं कि सिद्दीक अकबर को कितना लगाव मेरे आकाए करीम से है। उसके अंदर गए, साफ किया, आपने सुना होगा एक सुराख रह गया, अंगूठा लगा करके बैठ गए थे सिद्दीक अकबर। उसके अंदर 1000 साल पुराना सांप रहता था, उसने अंगूठे में जर डस लिया था, वगैरह वगैरह। ये सारी बातें आप लोग बारहा सुनते रहे होंगे। 3 दिन तक मेरे आका 3 रात तक उस गार के अंदर रहे। अब जो ये अब्दुल कादिर खान हशमती कहना चाहता है उसे गौर से करके सुनो और सुबह अंदाजा लगा लेना। ए मेरे प्यारे आका हुसैन की महफिल में आने वालों, तिल देखा है तुमने? तिल देखा है? तिल्ली तिल्ली सफेद वाली। सुबह उसको सूती कपड़े में लपेटो, फिर गुलाब की टोकरी में रात भर के लिए डाल दो, एक रात के लिए, तो सुबह वो तिल गुलाब की तरह महकेगा और रंगत भी उसी तरीके से हो जाएगा। लेकिन ये गुलाब को जो खुशबू मिली, गुलाब को जो रंगत मिली, ये मेरे आका के कदमों की बरकत से, मेरे आका के पसीनों की बरकत से। मैं ये कहना चाहता हूँ 3 दिन तक मेरे आका के साथ अबू बकर सिद्दीक रहे। अब मेरे आका के चेहरे से जो नूर झलक झलक कर, जो नूर उछल उछल कर अबू बकर पर चढ़ पड़ता है, तो जानते हो अबू बकर सिद्दीक कहते हैं ना कि जब मैं मदीना पहुंचा तो नबी की मोहब्बत में गार के अंदर रहा और नबी से छन छन कर नूर जो मुझ पर निसार होता रहा। जब मैं मदीना पहुंचा था आकाए करीम के साथ, तो मदीने वालों ने इम्तियाज नहीं कर पाया था कि सिद्दीक अकबर कौन है, आकाए करीम कौन है। अबू बकर सिद्दीक का बयान है, मेरे आका को अल्लाह ने नूर बना करके भेजा है। कहने का मतलब यह है, जब गारे सौर के अंदर मेरे आका तशरीफ फरमा होते हैं, अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया पेड़ को, ओ लंबी जांगिया पहनकर घूमने वालों, नबी को अपनी तरह कहने वालों, गौर करो, मेरे आका ने पेड़ को हुक्म दिया, वो पेड़ अपने जड़ों को उखाड़ता है, दाएं झुका बाएं झुका, आगे झुका पीछे झुका, और अपने जड़ों को समेटता है, आकर के गार के सामने आकर के खड़ा हो जाता है। फौरन अल्लाह ने मकड़ियों को हुक्म दिया, मकड़ियों ने आकर के जाला बुन दिया, कबूतरी ने आकर के अंडे रख दिए। अब जो है सुबह जब दिन की सफेदी नमूदार होती है, दिन निकलता है, वो मक्के के काफिरों ने देखा बिस्तर पर नबी नहीं बल्कि अली लेटे हुए हैं। आखिरकार आकाए करीम की तलाश में उतबा शैबा ने ऐलान करवा दिया, जो नबी को पकड़ करके लाएगा उसे इतनी दौलत दी जाएगी कि 7 पुश्तों तक खत्म नहीं होगी। दौलत के लालच में लोग चलते हैं आकाए करीम को तलाश करने के लिए। ए मेरे प्यारे आका हुसैन के दीवानों, अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कुछ जालिम उस गार तक भी आए। अबू बकर सिद्दीक ने जब गार के अंदर से देखा कि पैर नजर आ रहा है जालिमों का, डर गए थे। ए मेरे आका देखो, तलाश करते करते काफिर यहां तक आ गए, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया था, इन्नल्लाह ला तहज़न माना, ए अबू बकर मेरे
मेरे होते हुए तुम गम ना करो, मेरे होते हुए तुम घबराओ नहीं, ये कुछ नहीं कर सकते हैं। एक जालिम ने कहा था चलो इसके अंदर तलाश किया जाए, तब तक दूसरा बोला था नहीं नहीं, इसके अंदर अगर कोई गया होता तो मकड़ियों का जाला टूट गया होता, कबूतरियों का अंडा फूट गया होता, इसके अंदर कोई नहीं गया है। यहां तक कि उधर उतबा शैबा ने ऐलान करवा दिया जो नबी को पकड़ करके लाएगा, जो नबी को शहीद करके आएगा माज़अल्लाह, उसे बड़ा इनाम और इकराम दिया जाएगा। 1000 पहलवानों से ज्यादा ताकत रखने वाला सुराका नामी पहलवान निकला। सुराका ने कहा मैं पकड़ करके लाऊंगा। आका करीम का पीछा करता है। ए मेरे प्यारे आका हुसैन के दीवानों, अबू बकर सिद्दीक और मेरे आका 3 दिन के बाद जब वहां से निकले, एक बात बखूबी सुन लो, मेरे आका पैदल चले थे घर से, लेकिन जब गारे हवाम में आपने क़याम किया, सहाबे कराम के ज़रिए से कुछ खाने पीने का सामान भी मंगा लिया था और सवारी भी मंगा ली थी। अब मेरे आका जब अपनी सवारी पर सवार होते हैं, अबू बकर सिद्दीक अपनी सवारी पर सवार होते हैं। सुराका सारे रास्तों को जानता था, घोड़ा दौड़ाता हुआ भगाता हुआ तेजी के साथ आया। अबू बकर सिद्दीक ने मुड़ करके देखा, ओ मेरे आका सबसे बड़ा नामवर पहलवान आ रहा है, सुराका पहलवान आ रहा है, हम लोगों को गिरफ्तार करने के लिए आ रहा है। गैबदा नबी ने फरमाया ओ अबू बकर घबराओ नहीं, ओ अबू बकर परेशान न हो, ये मेरा कुछ नहीं कर सकता। यहाँ तक कि सुराका फंदा बना करके, रस्सी का फंदा बना करके फेंकना चाहता था आकाए करीम के ऊपर, सिद्दीक अकबर के ऊपर, कि फेंक करके फंदा जमीन पे गिरा दिया जाए। प्यारे आका ने मुड़ करके देखा, और जैसे मेरे आका ने मुड़ करके देखा, खुदा की मसलहत देखो, खुदा की मशीयत देखो, खुदा की मर्जी देखो, सुराका का घोड़ा आधा जमीन में धंस जाता है। कह दो सुभान अल्लाह। आधा घोड़ा जमीन के अंदर धंस जाता है। सुराका परेशान हो जाता है, ये क्या हुआ, मेरा घोड़ा तो जमीन के अंदर धंसता चला जा रहा है। थोड़ी देर तक परेशान रहा, उसके बाद गौर करके देखता है तो घोड़ा उसका आधा जमीन में धंस चुका था। उसने कहा ए अब्दुल मुत्तलिब के पोते, अब्दुल्ला के लड़के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका घूम करके देखते हैं, क्या बात है? कहा घोड़े को छुड़ा दो, जमीन से कह दो घोड़े को छोड़ दे, अब मैं वापस चला जाऊंगा। मुझे यकीन हो गया है कि आपको मैं पकड़ नहीं सकता, आप अल्लाह के नबी हैं। मेरे आका ने जमीन को हुक्म दिया जमीन छोड़ दे, जमीन छोड़ देती है। घोड़ा घुमा करके सुराका वापस होने लगे, मगर लालच बहुत बुरी बला होती है। सुराका ने सोचा शायद जमीन दलदल रही होगी इसलिए घोड़ा धंस गया होगा। फिर घुमाया घोड़े को, फिर सिद्दीक अकबर ने आवाज लगाई, ओ मेरे आका देखो देखो वो सुराका फिर आ रहा है। गैबदा नबी ने कहा आ रहा है तो आने दो। अब जब बिल्कुल करीब पहुंचा घोड़ा लेकर के सुराका, और फरसा डाल करके आप दोनों को गिराना ही चाहता था कि अल्लाह के नबी ने फिर निगाह नबुवत पीछे को देखी, उसका घोड़ा आधा नहीं बल्कि पूरा जमीन के अंदर धंस जाता है। और सुभान अल्लाह बोलो, पूरा घोड़ा जमीन के अंदर धंस जाता है। अब सुराखा चीख रहा है, चिल्ला रहा है, ओ मेरे आका रुक जाइए रुक जाइए, मैं आपका कलमा पढ़ करके मुसलमान होता हूँ। सुभान अल्लाह। मेरे आका का कलमा पढ़ के जब मुसलमान हुआ, कहा मेरे आका मैं मुसलमान हो गया, अब मुझे छुड़ा दीजिए। मेरे आका ने फरमाया ये बता तू मेरा पीछा क्यों कर रहा था, मुझे क्यों पकड़ना चाहता था? कहा सरकार उतबा शैबा अबू जहल अबू लहब इन लोगों ने कहा था बड़ी दौलत मिलेगी, बड़ा रुपया पैसा मिलेगा, रुपया पैसा के लालच में आकर के, अशरफियों की लालच में आकर के हमने आपका पीछा किया। ए मेरे प्यारे आका लेकिन मैं जान गया कि आप सच्चे हैं, उतबा झूठा है, शैबा झूठा है, इनके बुत झूठे हैं, अल्लाह ने आपको नबी बनाकर दुनिया में भेजा है। मेरे आका ने जमीन को हुक्म दिया तो छोड़ देती है जमीन। फिर प्यारे आका मुस्कुराते हैं और सुराका को करीब किया, कहा तू ये दौलत के लिए परेशान है, अरे मैं तो तेरे हाथ में कैसरो कसरा बादशाहत का सोने का कंगन देख रहा हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सोना मर्द के लिए हराम है, हराम, सोना मर्द नहीं पहन सकता, मगर सुराका के लिए गैबदा नबी जायज कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। इन्हें
सुराका के लिए मेरे आका सोना जायज कर रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। और हुआ यही मेरे भाई, सुराका जब बहुत बीमार पड़े, बहुत बड़ी बड़ी बीमारी पाई, एक मर्तबा तो बिस्तर से करवटें बदलना भी दुश्वार था। लोगों ने कहा था, ए सुराका अब लगता है तुम दुनिया से जाने वाले हो, दुनिया से तुम जो है मिटने वाले हो। तो सुराका उठ करके बैठ गए थे और कहा था, तौबा कीजिए, तौबा कीजिए, मैं मरूंगा नहीं, मैं मरूंगा नहीं। कहा क्यों? कहा अभी नबी का फरमान बाकी है। कह दो सुभान अल्लाह। कहा क्या मतलब? कहा इससे बड़ी बड़ी बीमारियां आई, मेरा बाल बेका ना कर सकी, और मैं उस वक्त तक मर ही नहीं सकता, क्योंकि जमीन फट सकती है, आसमान का शामियाना गिर सकता है, दुनिया का निजाम दरहम बरहम हो सकता है, मगर फरमाने मुस्तफा गलत नहीं हो सकता। कहा क्या मतलब? कहा मेरे आका ने फरमाया था कि मैं तेरे हाथ में कैसरो किसरा बादशाह के सोने का कड़ा देख रहा हूं, सोने का कंगन देख रहा हूं। ए जानी मेरे साहिब नबी के साहिबा सुनो, अरे मेरे चाहने वालों गौर करो, जब तक वो सोने का कड़ा मैं पहनूंगा नहीं, मुझे मौत आएगी नहीं। आखिरकार हुआ यही। हजरत सिद्दीक अकबर के बाद उमर फारूक आजम के जमाने में जब मुल्क शाम, मुल्क रोम को फतह किया गया, तो जानते हो कैसरो किसरा बादशाह के सोने का कंगन आया, और उससे तोहफे में हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कैसरो किसरा के सोने के कंगन को हजरत सुराका को दिया। जब हजरत सुराका वो सोने के कड़े को पहन लेते हैं, आंखों से मौसलाधार आंसू चल जाते हैं, रोने लगे। सहाबा ने पूछा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि आखिर तुम्हें सोने के कड़े मिल गए। सुराका कहने लगे, नहीं नहीं, मैं इसलिए रो रहा हूं कि अब मैं दुनिया से जाने वाला हूं। कहा क्या मतलब? कहा नबी का फरमान सही हो चुका है, नबी ने जो फरमाया था वो सोने का कंगन मुझे मिल गया। अल मुख्तसर यूं सुनो, इसी हाल में हजरत सुराका दुनिया से फना हो जाते हैं, दुनिया से चले जाते हैं। मेरे भाई हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और प्यारे आका जब मदीने में पहुंचे, हजरत अय्यूब अंसारी के घर आपकी ऊँटनी रुकी। ये बहुत सारी बातें हैं, आप लोग बारहा सुनते रहे होंगे, टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है। आओ मैं तुम्हें अब ये बताऊं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कितने दिन तक के हुकूमत की। उसके बाद आप पर्दा फरमाए, पर्दा फरमाने के बाद किसने आपको गुस्ल दिया, कहां पर आपको दफन किया गया, आखिरी बात चलते चलते सुनो। और इंशाअल्लाह कल आप लोग इंशाअल्लाह हजरत उमर की अदालत और हजरत उस्मान गनी की सखावत तुम्हें सुनना है, क्योंकि कल गालिबन 3 तारीख हो जाएगी, मुहर्रम की 3 तारीख हो जाएगी, और ये चौथा प्रोग्राम हो जाएगा। और इंशाअल्लाह मैं ये चाहता हूं कि 5 तारीख से सारी बातें इधर की पूरी करके सिर्फ दास्तान करबला छेड़ दिया जाए, क्योंकि उधर टाइम मिल जाएगा, आराम से दास्तान करबला आप लोग सुन सकेंगे। मेरे भाई हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 2 साल 2 महीने तक हुकूमत की है, 2 साल 2 महीने तक सिर्फ आप खिलाफत की बागडोर को संभाला है। आप एक रात ख्वाब देखते हैं, क्या ख्वाब देखा हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कि गैबदा नबी तशरीफ लाए हैं और मेरे आका के कंधे पर सफेद चादर है। अबू बकर सिद्दीक गौर से देखने लगे, देखते देखते वो सफेद चादर सब्ज हो जाती है, यानी हरा हो जाता है। अबू बकर सिद्दीक ने जब ये ख्वाब देखा, सुबह जुमा का दिन था, लोगों को मुखातिब करके मस्जिद नबी में खड़े होकर तकरीर करते हैं, मैंने आका करीम को रात में देखा है और ऐसा मामला देखा है। लोगों रोने लगे, लोगों से पूछा गया क्यों रो रहे हो? कहा लगता है अबू बकर सिद्दीक अब दुनिया से जाने वाले हैं। हालांकि जुमा के बाद आप घर आते हैं, आपकी तबीयत बिगड़ने लगती है, आपकी तबीयत खराब होने लगती है, यहां तक कि आप बिल्कुल जागनी के आलम में पहुंच जाते हैं, बिल्कुल दुनिया से जाने वाले हैं। मौलाए कायनात को बुलाया और आंखों में आंसू भर करके इरशाद फरमाया, ए मौला अली मेरी आखिरी वसीयत कबूल करो, मेरी आखिरी बात को मानो। कहा ए अबू बकर सिद्दीक, ए अमीरुल मुस्लिमीन बताओ क्या कहना चाहते हो? सिद्दीक अकबर ने कहा, देखो देखो तुमने अपने इन्हीं हाथों से मेरे आका को नहलाया था, मेरे आका को गुस्ल दिया था, लिहाजा तुम अपने हाथों से मुझे गुस्ल देना और कफन देना। इस तरीके से मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, आपने कहा ठीक है। उसके बाद अबू बकर सिद्दीक ने कहा, जब मेरा जनाजा तैयार हो जाए तो मुझे आका के रोज़े के सामने लेकर के जाना और सलातो सलाम पढ़ना, सलातो सलाम पढ़ने के बाद आवाज़ देना, उदखुलुल हबीब इलल हबीब फ़इन्नल हबीब इलल हबीब मुश्ताकुन, यानी इस तरीके से कहना, जब अंदर से आवाज़ आ जाए और मेरे आका के रोज़े का ताला
اپنی مرضی سے آٹومیٹک کھل جائے, اپنی مرضی سے کھل جائے اور اندر سے اجازت مل جائے تو آقا کے پہلو میں مجھے دفن کرنا, اور اگر تالا نہ کھلے, دروازہ نہ کھلے, اندر سے آواز نہ آئے تو جنت البقیع قبرستان میں مجھے دفن کر دینا, یہ میں تم کو وصیت کر کے جا رہا ہوں. حضرت مولا علی نے کہا ٹھیک. کچھ دن اور گزرتا ہے کہ پتہ چلا کہ مدینے میں خلیفۃ المسلمین جو تھے وہ دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کا وصال پرملال ہو جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت ابو بکر صدیق جب دنیا سے کوچ کر گئے, مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا اور کفن پہنایا. اے میرے پیارے آقا حسین کی محفل میں آنے والوں, یہ تاریخی باتیں تم یاد رکھا کرو. اگر کوئی تم سے کل پوچھ لے کہ بتاؤ ابو بکر کے جنازے کو کس نے تیار کیا تھا, تو بتا سکو آقا کریم کو کن کن لوگوں نے غسل کیا تھا. یہ سب تمہیں یاد رکھنا چاہیے. جہاں تم فلمی گانے, فلمی ڈائلاگ یاد کر لیتے ہو, وہاں اسلاف کی تاریخ بھی یاد رکھو, کیونکہ مرنے کے بعد یہ دنیا دار کام نہیں آئے گا, محبوب پروردگار کام آئے گا. یہ دنیا والے کام آنے والے نہیں ہیں, اللہ کے نبی کام آنے والے ہیں, اللہ کے نبی کے نواسے حسنین کریمین کام آنے والے ہیں. میرے بھائی, کہنے کا مطلب یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق کے جنازے کو تیار کیا گیا. حضرت علی اور دیگر صحابہ آپ کے جنازے کو لے کر آقا کریم کے روضے اطہر کے سامنے رکھتے ہیں, سب کے سب پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. حضرت مولائی کائنات دروازے کے قریب پہنچ کر کہتے ہیں ادخلوا الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق. یعنی اے اللہ کے نبی, آپ کا دوست اجازت مانگ رہا ہے, ایک حبیب سے ملنا چاہتا ہے. اے میرے آقا اگر اجازت ہو تو آپ کے پہلو میں دفن کیا جائے. اتنا جیسے علی نے کہا فوراً دروازہ کھل جاتا ہے, اندر سے آواز آتی ہے او لمبی جانگیاں پہن کر گھومنے والوں, میرا نبی مرا نہیں, میرا نبی مردہ نہیں, میرا نبی زندہ ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے آقا بدرجہ اولا زندہ ہے. میرے آقا کریم کے روضے اطہر سے آواز آتی ہے ادخلوا الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق. یعنی اے لوگوں سنو, ایک دوست کو ایک دوست سے ملا دیا جائے, ایک حبیب سے ملنے کے لیے بے قرار ہے. دروازہ کھل جاتا ہے. میرے آقا کے پہلو میں, میرے آقا کے بازو میں حضرت ابو بکر صدیق کی قبر کھودی جاتی ہے. حضرت ابو بکر صدیق کو دفن کر دیا جاتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں. اے میرے بھائی, یہ رہا حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی کا حال. کس طرح آپ ایمان لائے, کتنے دن تک جو ہے باغ و ڈور حکومت کی سنبھالی, خلافت کتنے دن تک کیا, اس کے بعد آپ دنیا سے کوچ کر گئے. حضرت ابو بکر صدیق کے پردہ فرمانے کے بعد پورے مدینے میں کوہرام مچ گیا تھا. مدینے کے والوں کے گھروں سے دھواں اٹھنا بند ہو گیا تھا. پورا ماحول سوگوار ہو چکا تھا. اس کے بعد لوگوں نے مشورہ کیا, حضرت عمر فاروق اعظم کو خلیفۃ المسلمین بنایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کس طرح ایمان لائے, کتنے دن تک انہوں نے حکومت کی, انشاءاللہ یہ کل کے بیان میں آپ کو سننا ہے. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کرسی خلافت پر بیٹھتے ہیں, کتنے دن تک انہوں نے حکومت کی. اور حضرت کربلا کا نقشہ, کربلا کی جنگ, یہ حضرت عثمان غنی کے جنگ سے ہی شروع ہو جاتی ہے. انشاءاللہ یہ دو باتیں تمہیں کل سننی ہے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے میرا بھائی, یہ بتاؤ کہ میری بات آپ حضرات کے سمجھ میں آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ سلسلہ بس سلسلہ سمجھ میں بات آتی جا رہی نا. اگر جس بھائی کے سمجھ میں نہ آئے تو وہ مجھ سے بتا سکتا ہے, میں اس سے بھی آہستہ بول سکتا ہوں, اس سے تیز بھی بول سکتا ہوں. اگر اسپیڈ میری زیادہ ہو تو کم کر سکتا ہوں, اگر کم ہے تو تیز بھی بولنے کی عادت مجھے ہے. لیکن میں یہ چاہتا ہوں میرا بھائی کہ جو بھی بات کی جائے تمہارے ذہن تک اتر جائے. خدا کی بارگاہ میں عریضہ ہے, مولا گفت و شنید میں جو غلطی ہوئی ہو رب تعالیٰ اسے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پیارے آقا حسن, پیارے آقا حسین کے نانا یعنی ہمارے تمہارے آقا خاتم پیغمبرہ کی بارگاہ میں ہم سب محبت بھرے انداز میں کھڑے ہو جائیں اور نبی پر صلاۃ و سلام پڑھیں.